Good evening and welcome to the Wednesday May. I'm Shashidhar, your host, and I welcome you all. So welcome Tony, welcome Kavanji, welcome Preeti ji. Good evening, Shashi. Good evening and welcome. Good evening, my Bhaiya. audio is clear. आवाज आ रही है, clear आ रही है? हाँ जी, हाँ जी. Perfect. Good evening, Bhaiya. Good evening, Preeti ji. Good evening, Rima ji. Right. So how many of you are excited? How many of you are excited? Full of energy, enthusiasm? Yes, good. हाँ, तो कौन शेयर करना चाहेंगे? लास्ट हफ्ता कैसा गया? And I know there must be a lot of activity. I've been talking to most of you, so a lot of actions, a lot of events have been happening in your life. And let's see who is sailing on top of it, who has overcome the situations, and that helps us in the topic for today also, which is going to be a continuation of last week. जो हमने last week बात करी थी, levels of intelligence, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, and let more people join in. Meanwhile, we can have some sharings, right? So who wants to share? Tony, Kavan, Kavan, you missed out last session. Last में आप शायद नहीं थे. हाँ सर. हाँ, तो आपने रिकॉर्डिंग देख लिया ना उसका, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन होगा, राइट? ओके सर. हाँ, नहीं देखा आपने तो फिर थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा आपके लिए, बट नॉर्मली अगर आप मिस कर जाएं तो वो कैचअप करना, क्योंकि ज्यादातर हम लोग उसी वीक का कंटिन्यूएशन करते हैं, राइट? Okay, that's a new topic, not exactly a new topic, but new understanding, I would say. एक नए लेवल पे हम उसको समझ रहे हैं, तो लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस को. तो इससे पहले कि हम टॉपिक पे चलें आगे, पहले कोई शेयरिंग्स हो जाए, तो कौन शेयर करना चाहेंगे? क्या चल रहा है लाइफ में? हीलिंग की एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? सेल्फ हीलिंग, औरों की हीलिंग कैसे चल रही है? यस टोनी. Well, Shashi, you are aware of the fact that there are 3 cases of COVID positive in my house, and I will request if so Tony, 1 second. If somebody is not speaking, and there is disturbance, I would request them to be on mute. Okay, and if background is clear, only then you unmute and speak. Yes, go ahead, Tony. So, as you know that I've been speaking to you also, and the only thing is that the whole day since the time I've come to know, I've been just doing healing. My whole day goes into healing only, actually. Whether it is the affirmation box, whether it is the golden light, whether it is the third eye on the wall, whatever. Self-healing has just gone out of the window, because right now I'm more interested in getting the others healed up. So that's taking most of my time, and rather, it's occupying most of my mental state of mind also. So that's what it is right now. So I can't say anything much. You know quite a bit of the whole thing. So that's Right. about it right now. Right, and just to know some facts out of curiosity, did you get those pink sheets? Yes or no? No, not as yet, Okay, because good. That's fine. That's no, because we are on a public platform, so no, because get it as soon as possible. That's all I would say, right? Because that is a very powerful way of healing. So you get into that mode of healing as soon as you can. That's all, right? बाकी हम 1-to-1 बात करेंगे, right? But इसमें एक बात, welcome अमित जी. नमस्कार प्रीति जी. आपको करूंगा हाजिर. कोई बात टोनी भाई नमस्कार. हेलो नमस्कार जी. टाइम आपको कवर को तो बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ, या मैं भी लास्ट वीक नहीं था ना? Yes, in fact, last week we had very little attendance, so many people missed out. So not a problem. But Tony, yes, coming back to what Tony was sharing, so let me tell you, Tony, you shared कि what लोगों की healing कर रहा हूँ, तो मेरी self healing has gone out of the window. It's not like that. When you are healing others, you are getting a lot of healing. Okay. आप 5 लोगों को या 3 लोगों को healing भेज रहे हो, तो उसका 50% healing आपको मिल रहा है. So you are actually healing yourself 2 times of what you would be doing in self healing. Okay. So when you include more people in the healing, that is when your actually self healing will start happening. The divine takes care.
correct? Okay. If you're doing a good action and post on good actions, right? तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो good actions का हमेशा आपको रिजल्ट मिलना ही है, तो चाहे वो निष्काम कर्म करो या सकाम कर्म करो, आप अच्छे कर्म का फल आपको मिलना ही है. Divine will give you that. So if you're healing others, automatically you get healed because the energy is flowing through you, right? आपके क्राउन चक्रा से आपके सिस्टम में वो एनर्जी आ रही है, आपके एनर्जी बॉडी को एक्टिवेट कर रही है, हील कर रही है, उसके बाद वो हीलिंग एनर्जी कहीं और जा रही है, राइट? और हीलिंग के प्रोसेस को अगर हम समझ रहे हैं तो यू कैन हील बाय साइट, यू कैन हील बाय योर वर्ड्स, यू कैन हील बाय टच एंड यू कैन हील बाय योर थॉट, करेक्ट? सो ऑल दीज आर वेरी पावरफुल मोडालिटीज ऑफ हीलिंग. तो आप किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी को देख रहे हो, किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो, किसी को टच कर रहे हो, इन सब से आप लोगों को हील कर रहे हो. So you're healing the whole universe. And meanwhile, when you're doing that, keep touching yourself. So you will automatically heal yourself. Correct? अभी भी आप बैठे हुए 1 घंटा बैठे हुए अपने हाथ को कहीं भी अपने बॉडी पार्ट पे रख लोगे आप, तो your healing is on. Correct? Yes. So this is slightly about the for the healers, right? So you don't have to worry. मेरे को कब healing करना है? 24 घंटे आप अपनी healing कर सकते हो. 24 घंटे. Every day, 24 hours, you can be healing yourself. So you should be aware. That's why I say awareness is important. What you're doing is important, but more than that, your awareness of what you're doing is more important, because that will give you the result. And today we are going to touch that in a big way. जब हम बात करेंगे आपके levels of intelligence की, तो ये point और भी ज़्यादा strongly आप experience करेंगे. Right? Okay, good, Tony. Good that you shared, and it sort of set the ball into motion. Right? Who else wants to share? Kavan, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? हाँ अमित जी, आप कुछ बोल रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट में एक बात मैं पूछना चाहता आपसे कि जैसे कि हीलिंग की साइकिल्स हमने जो भी अभी कोर्स किया संडेज वाला 11 AM वाला, क्या हमने उसमें हीलिंग की डिफरेंट साइकिल्स कवर किया जैसे आप कर रहे हैं, जैसे आपने करी 2 लोगों के लिए? तो क्या नहीं, वो नहीं मिस हो गया था मेरा, इसीलिए मैं नॉर्मली क्या करते हैं हीलिंग में, बिकॉज राइट नाउ एज ए बेसिक कोर्स ऑफ हीलर्स यू हैव टू फर्स्ट हील पीपल इन योर लाइफ. So obviously if these people are in your life for your whole life, you will be healing them for the whole life. आप अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने क्लोज रिलेटिव्स को, क्लोज फ्रेंड्स को जिंदगी भर के लिए हील करोगे, करेक्ट? So when you are healing them, my idea is you put them in the affirmation box and you heal them for lifetime. इसलिए मैंने साइकिल्स की बात नहीं करी, बट अगर किसी और की आप हीलिंग कर रहे हो तो उसमें रिक्वेस्ट, मैं बता रहा था, रिक्वेस्ट फॉर हीलिंग इज अ मस्ट अलॉन्ग विद ग्रेटिट्यूड फॉर द हीलिंग. ही हैज टू रिक्वेस्ट. डिस्टर्बेंस आ रही है तो म्यूट कर लीजिए, मैं बार नहीं बोलूंगा, ओके? या सो एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए और उसमें एनर्जी एक्सचेंज का ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए. देन द अदर पर्सन इज रेसिपिएंट ऑफ दैट हीलिंग. इफ समबडी इज नॉट नोन टू यू, ये आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं करना है, जिनके साथ ऑलरेडी आप कार्मिकली इन्वॉल्व हैं, राइट? और उनके अगर ब्लॉक्स, एक सेकंड ना मुझे, उनके ब्लॉक्स अगर स्ट्रांग हैं, 4 चक्रा से ज्यादा अगर ब्लॉक हैं, then how would you know that? You may not know it, so you can refer the case to me. I can tell you that in इस केस में 4 चक्रास या 5 चक्रास या 7.5 चक्रास ब्लॉक हैं. In that case, to get that effective healing, we have to do that healing for 3 cycles of 21 days. That is the most powerful way to erase it, not only from the physical level, but also from the subtle body or the energy level. करेक्ट? इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर कोई वेंटिलेटर में है, कोई हॉस्पिटल में है, आप उनकी हीलिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ डिस्चार्ज के बाद उनको छोड़ मत दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल बॉडी में हुआ है, वो भी शायद पूरा नहीं हुआ. उस समय इमरजेंसी थी तो डॉक्टर भी आजकल जल्दी बेड खाली करने के लिए डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं. तो हो सकता है उनकी प्रॉपर मेडिकल हीलिंग भी पूरी ना हुई, तो कम से कम एनर्जी हीलिंग तो पूरी करो. तो इसलिए 3 साइकिल्स मैंने कहा था कंपल्सरी. 3 साइकिल्स टफ केसेस में आप करिए, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, स्टेडी रिजल्ट्स आएंगे. नॉट ओनली दैट, दे विल आल्सो बी हैविंग अ वेरी स्ट्रांग इम्यूनिटी व्हेन दे गो बैक, राइट? दैट वाज द होल पॉइंट. यस अमित जी, आप कुछ बोल रहे थे? So 3 cycle primarily should apply on those people where you're not going to meet them for a long time, or even if you are not karmically involved with them, I would put it that way. That is the right equation. Correct. अच्छा, why 3, why not? So more the merrier obviously. So more तो जरूरी होगा तो करेंगे ना. अगर टफ केस है कोई तो 4 साइकिल्स 5 साइकिल्स भी करता हूँ मैं, बट 3 ऐसे केसेस में 3 जरूरी हैं, बिकॉज वी नॉर्मली टॉक ऑफ कॉम्बिनेशन. सो यू कैन से ब्रह्मा विष्णु महेश का ट्रिनिटी है, तो उस हिसाब से 3 इज ए स्टेबल वन. उसके बाद तो आप जितने मर्जी कर सकते हो.
But at the same time, these three cycles have the same content in every cycle. It does not necessarily have to be different. No, healing modalities will remain the same. Affirmation can be the same. Healing So modalities can be different, but affirmations can be the same. So you can heal them in the affirmation box for maybe 2-3 months, right? Or you can heal them in that special modality that we have. कोई भी modality आप use करिए, लेकिन आपको उसमें 3 cycles के लिए कर रहे हैं, यानी कि 63 days. 63 days की healing करेंगे, तो chakras clear हो जाएंगे, stable energy हो जाएगी, aura balance हो जाएगा, chakras clean हो जाएंगे, and he will be in a much better position to take on life easily. That's why I was saying कि in our discussion that I was telling Amit ji, तो अमित जी इसलिए बोल रहा था कि वो 3 साइकिल करने जरूरी है और वो करने हैं. That's it. No, that's fine. By the way, आप कुछ बोल रहे हैं? So they don't have to be very different from each other. They can be almost similar activities in all the 3 cycles. हाँ. It's only the level of healing will keep on improving. जैसे जैसे ब्लॉक्स हटते जाएंगे वैसे वैसे उनका फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होता जाएगा, वैसे उनके अगर वेल्थ में कोई इशू है तो वो इंप्रूव होता जाएगा, अगर उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो इंप्रूव होती जाएगी. इम्पैक्ट ऑल द एरियाज, करेक्ट? हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, तीनों एरियाज को आप उससे इम्पैक्ट कर सकते हैं. So there's like a level कि पहले level 1, level 2, level 3 ऐसा नहीं है. नहीं ऐसा कुछ नहीं. Same affirmations will be used. Same affirmation can be used, right? Right, and Preeti has been doing that wonderful and she has done a great job, right? So yeah, so बहुत सारे cases में प्रीति जी and Smriti ji of course also is there. तो हम तीनों मिलके healing कर रहे हैं in tough cases. So it is pretty good the team that we have, and बहुत लोगों की हम combined healing कर रहे हैं, which is powerful, correct? क्योंकि emotion level पे कोई भी इधर-उधर हो सकता है उस समय, right? So when a team is healing, obviously group healing has much more power. And specifically, if I talk, then Preeti ji and Smriti ji are in a very different zone of healing now, and they are doing great healings. So Smriti ji, thank you very much. Siri Pitatapi involved. Thank you. Priceless. Thank you so much, Amit ji. Thank you so much, sir. Great. So that's about healing, and we are away from our topic for today. Okay, so let's come back to the topic of today before we take last sharing. Last sharing, anybody wants to share? Goli ji, welcome, and Smriti ji, welcome. Okay, yeah. So you can be on that non-video mode. That is fine, but keep sharing and keep speaking whenever you feel like. That's fine. So Tony and Kavan, anything you would like to share, or we move on? I'd like to share. You shared. Sorry. Thank you. You were the first one to share. Yeah. Yes, Kavan. No, sir. Tony, okay. Sir, please. All right, good. So we will start with the agenda for today, and the agenda for today is what? कितने लोगों ने पढ़ा? आज agenda क्या है? Question based discussion on IQ, EQ, AQ and SQ levels. Very good. But yeah, the topic clear हो गया आपको. We will be having question based discussion. That means we are going to look at what is this levels of intelligence, and then we will have some understanding, and some things we have already done. So we will do that recap first, and then we will move on. But first, let me ask, how many of you are aware of these terms? IQ क्या है? कौन बताएंगे? Intelligent quotient. Intelligence quotient. Perfect. EQ क्या है? Emotional. और इन दोनों के ऊपर हमने पिछले हफ्ते बात भी करी थी, and Sanjeev and I shared, and Preeti ji shared. So anybody who has missed out on what is IQ and EQ, how are they different? आपको last week का वीडियो एक बार चेक करना है, right? I will do a quick recap anyway, but you will get more details there, more masala there, more understanding there. Yeah. So that is about intelligent quotient and emotional quotient. Next we come to AQ. कितने लोग जानते हैं AQ क्या है? AQ क्या है? नहीं मालूम. This is called adversity quotient. How do you face an adversity? Life में adversity आ गई, life ने उठा के आपको पटक दिया नीचे. अब आप क्या करोगे? रोगे या क्या करोगे? That will tell you, the adversity quotient will tell you what are you going to do after that. Okay. And of course, obviously the fourth one that we call is the SQ, which is the some people say that as a social quotient, but since we are all on a spiritual journey, I would prefer to call that spiritual quotient. I don't know what people call. I refer to it as a spiritual quotient, and I have some very good distinctions for that, right? So अगर आपका SQ high है, which is the ultimate level, then you will be good in IQ. और may not be IQ. IQ तो खैर आपका जो है आपकी स्टडीज और आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा वो.
बट व्हाट यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू इज दैट अगर आपका SQ अच्छे लेवल पे है, स्टेबल लेवल पे है एंड एवर इंक्रीजिंग लेवल पे है, तो आपका EQ एंड आपका AQ यानी कि इमोशनल क्वोशेंट और एडवर्सिटी क्वोशेंट आपका बहुत स्ट्रांगली डेवलप होगा और लगातार आगे बढ़ेगा। तो हम उस पर फोकस करेंगे, थ्योरी पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, हम ये देखेंगे कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लेवल्स को कैसे इम्प्रूव करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो let us move on to the topic what we covered last week and then we will take it on from there. तो सबसे पहले हमने लास्ट वीक में देखा था जनरल अंडरस्टैंडिंग आउटसाइड वर्ल्ड, जो हमारी है बाहर की दुनिया जो है वो 3 चीजों पे टिकी हुई है। हेलो कवन, इज दैट? Oh, sorry, sir. या म्यूट योरसेल्फ। यस, तो बाहर की दुनिया जो है हमारी, द आउटसाइड वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन 3 यू कैन से पैरामीटर्स और 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स कौन से हैं जिसपे बाहर की दुनिया टिकी हुई है, कौन बताएंगे? ये हम कर चुके हैं, बहुत बार याद होना चाहिए, नहीं? सर आप म्यूट पे हैं, अमित जी म्यूट पे हैं। circumstances circumstances, व्यक्ति व्यक्ति और वस्तु, वस्तु। things Perfect, and perfect, very good, circumstances. very good. So, though Amit ji is dealing with a lot of emergency situations, yet he is able to recollect that. That's good, right? तो बाहर की दुनिया बहुत क्लियर है, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। हाँ, तो वैसे याद रखें, वस्तु, थिंग्स, व्यक्ति, पीपल एंड परिस्थिति, सिचुएशंस। तो ये बाहर की दुनिया है और जिसपे हमारा बाय द वे कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम चाहते हैं बहुत कुछ, ये ऐसा हो, वो वैसा हो, वो इंसान ऐसा हो जाए, वो सिचुएशन ऐसी हो जाए, वो चीज मुझे मिल जाए, whatever we want and desire, that is separate, but then none of these is in our control. ये situations, लोग और चीजें, these are not in our control, right? Then अंदर की दुनिया हमारी क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हम बोलेंगे ईगो, इमोशन, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी। ऑर्डर थोड़ा सा चेक कर लेना कौन सा कहाँ है, बट ये बेसिकली हमारी अंदर की दुनिया है, ठीक है? ईगो है, इमोशन है, इंटेलेक्ट है और मेमोरी है। और अगर अंदर की हमारी ये जो वायरिंग है इसको हम ठीक कर लें तो हमारी बाहर की परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी कि बुद्धा के हिसाब से अगर हम बात करें तो फर्स्ट एरो तो हमको हिट करेगा, लेकिन सेकंड एरो से हम बच जाएंगे, क्योंकि सेकंड एरो हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारे कंट्रोल से चल रहा है, राइट? और इसी को हमने आगे बढ़ाते हुए कहा था कि सबसे पहला लेवल जो है, जो अगर हम 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस पे जाते हैं तो बॉडी और ब्रेथ के बाद फर्स्ट लेवल जो आता है वो है हमारा इमोशन, मनस जिसको बोलते हैं, जिसको आमतौर पे हम मन बोलते हैं, राइट? तो इमोशन में हमने देखा इमोशन को कैसे हमने कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे हमारी बात शुरू हुई थी इमोशनल इंटेलिजेंस की, और फिर हम आए थे इन सारे लेवल्स पे, ओके? तो इंटेलिजेंस लेवल जो आपका है, जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ के हम रट्टा मार के जो भी मार्क्स लेके आए हैं, वो हमारा IQ है। कॉमन सेंस लगा लीजिए, आपने ग्रेजुएशन करी तो वहाँ पे आपका कुछ IQ बना, कुछ पढ़ाई लिखाई करी, आपने इंजीनियरिंग करी, डॉक्टरी करी, MBA किया, IQ थोड़ा सा और बढ़ गया, राइट? तो IQ आपका एक लेवल तक बढ़ता रहता है, उसके बाद आप पढ़ना छोड़ देते हैं तो आपका IQ बंद हो जाता है बढ़ना, एंड देन यू थिंक दैट यू आर बहुत ज्ञानी और आप ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। और अब आधा अधूरा ज्ञान लेके हम जब बांटना शुरू करते हैं तो लोगों की सिचुएशन, वर्ल्ड की सिचुएशन ऐसी ही कुछ होती है जो आमतौर पे चल रही है, नॉट द पैंडेमिक सिचुएशन बट द अदर सिचुएशन, जहां आई एम राइट यू आर रॉन्ग वाली इक्वेशन आ जाती है। क्यों? बिकॉज पीपल डोंट नो हाउ टू एक्सेप्ट द अदर पीपल्स व्यूज। लोगों को अपने मत से अलग कोई मत मिल जाता है तो उनको समझ भी नहीं आता करना क्या है। दे हैव नो आइडिया हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस, राइट? तो IQ जरूरी है, आपके रोजमर्रा के व्यवसाय के लिए जरूरी है। तो यू कैन से योर बिहेवियर एंड योर ऑक्यूपेशन और योर प्रोफेशन, उसके लिए IQ जरूरी है, आपकी क्वालिफिकेशन डिपेंड करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट IQ के बाद या IQ के कंपैरिजन में आता है हमारा EQ। हाउ डू यू डेवलप योर इमोशंस, करेक्ट? और यहाँ पे हमने बात करी थी 2 इमोशंस की, जो हमने पिछले हफ्ते बात भी करी थी, which was like first emotion we identified was very common, fear और anxiety। तो fear और anxiety जो है, इसको अगर हमने न्यूट्रलाइज करना है और हमको इसको पॉजिटिव बनाना है, तो ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस।
तो दैट विल गिव यू द इमोशनल EQ आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है वो हाई तब होगा जब आप नेगेटिव इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव करने की कला सीख जाएंगे। और उसको हमने देखा था, फियर और एंजाइटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या करना है, दो चीजें हमने देखी थी। फेथ, फियर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको फेथ बढ़ाना है, क्योंकि हमको अपनी कॉन्शियस, अपनी छोटी से एक दिमाग को लेके नहीं चलना है। We should know that what divine is planning is much better for us, and what we are planning for ourselves may not be the best for us. हमको लग रहा होगा कि ये चाहिए, लेकिन हो सकता है वो हमको ना मिले या वो ना हो हमारी लाइफ में, उससे हमारी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। एंड वी आर टॉकिंग ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, करेक्ट। तो कुछ चीजें हमको नहीं मिलती हैं, कभी कभी प्रमोशन नहीं मिलती है, कभी वो इंसान नहीं मिलता है, कभी वो चीजें नहीं मिलती हैं लाइफ में। तो यू हैव टू मूव ऑन विद दैट एंड हैव फेथ इन डिवाइन, दैट जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ही हैज बेटर प्लान्स फॉर मी। तो आपका फियर और एंजाइटी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड आप आगे बढ़ जाते हैं। फियर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास दो हैं, फियर और एंजाइटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक तो हो गया फेथ, और दूसरा हमने डिस्कशन में निकाला था क्या, ग्रैटिट्यूड, राइट। जो संजीव जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ग्रैटिट्यूड अगर रहेगा, आइदर यू आर ग्रेटफुल और fearful, you can't be both, they both cannot coexist, correct। तो अगर आप fearful हो तो आप grateful नहीं होंगे, और अगर आप grateful हो तो आप fearful नहीं होंगे। तो आपको चूज करना क्या करना है। अब ये कॉन्शियस डिसीजन है, यहाँ पे बुद्धि काम करेगी। ऑप्शन अगर आपने दे दिया, मन ने अगर ऑप्शंस दे दिए, तो बुद्धि डिसाइड कर लेगी क्या करना है। और अगर मैं आपको चॉइस दूं fearful होना या grateful होना, बुद्धि सीधा बोलेगी grateful होना। तो दैट बुद्धि नोस, बुद्धि को इतना तो मालूम है। लेकिन अगर वो ऑप्शन ही नहीं दोगे, माइंड ने अगर वो ऑप्शन जनरेट ही नहीं किया, तो बुद्धि उस पर एक्शन लेगी नहीं। फेयरफुल होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, फेयर पे फोकस करते रहोगे, एंजाइटी पे फोकस करते रहोगे, देन यू विल बी ऑलवेज लिविंग ए फेयरफुल लाइफ। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस भी वैसे ही बनेगी। क्योंकि एक और जो हमने रूल लॉ देखा था, क्या था, व्हाट यू फेयर मोस्ट विल हैपन। जो आप सबसे ज्यादा डरते हो जिस चीज से, वो होगी। और यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट बोली थी, अगर आपको याद हो, 90% ऑफ योर फेयर्स आर इनऑथेंटिक, कभी होंगे ही नहीं। लेकिन बाकी 10% आप खुद सोच के ले आते हो, और वहां पे भी काम कर लो तो यू विल बी 100% फ्री फ्रॉम फेयर। So you will be experiencing courage, you will be experiencing love, and you will be experiencing complete faith in the divine. जितना आपके फेथ होगा डिवाइन पे, उतना फेयर कम होगा आपकी लाइफ में। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमने एक और चीज देखी थी, दुख, सॉरो, सैडनेस, जो भी है आपका, वो क्या है। अगेन, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के ना होने की वजह से, पास्ट में था अब नहीं है, या कभी था ही नहीं और वो चाहिए आपको, तो आपको दुख होगा। उसको तो मिल गया, मेरे को नहीं मिला, राइट, दुख होना शुरू हो जाता है। तो आपको ग्रेटफुल होना है यहाँ पे। तो ग्रेटिट्यूड विल एक्चुअली बी द ब्रह्मास्त्र फॉर बोथ फेयर एज वेल एज दुख। मेकिंग सेंस? अगर एक्सपीरियंस से नहीं जोड़ पा रहे हो तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखिए। आपको जब भी आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ, सोचिए क्या था वो। प्रमोशन नहीं मिली, वो इंसान लाइफ में था, वो चला गया, करेक्ट, या आप चाहते थे कि वो हो, नहीं आया। अगर आ गया तो आप डरने लगे कि कब जाएगा, करेक्ट। तो you will have lot of fears and you will have lot of anxiety and you will have lot of sorrow, all depending on वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति जैसे आप चाहते थे वैसी नहीं हुई। तो आपको क्या देखना है, अपना पूरा का पूरा नजरिया चेंज कर लीजिए। जो कुछ आपको मिला हुआ है भगवान से, उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। Thank God for a healthy body. Thank God for getting 3 meals a day. Thank God for having a good house where you can spend your when you can sleep easily for every night you have. So रोज सुबह उठते हो, आपकी सांसें चल रही हैं, और आज की डेट में तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब रोज सुबह उठ के अगर आप सांस ले रहे हो तो you should be thankful to God. Not many people are doing that, right? So you are those lucky ones who survived today. And by the way, आपकी लाइफ में जितने भी टफ सिचुएशंस आए हैं, आपकी एज जितनी मर्जी हो इस बॉडी में, अगर 30 साल 35 साल पार कर चुके हैं, तो 30-35 साल में आपने जितनी भी मुसीबतें झेली हैं, आप उन सबको पार करके अभी तक डटे हुए हो। हाँ, तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। कमाल है, इतनी सारी चीजें हो गई मेरे साथ लाइफ में, अभी तक मैं टिका हुआ हूँ, अभी तक डटा हुआ हूँ, राइट। So I am strong. I am really, really strong, right? So I am a champion.
तो अपने आप को शाबाशी दो और आगे बढ़ जाओ। तो बी ग्रेटफुल टू गॉड। तो द मोमेंट यू आर ग्रेटफुल, आप दुख भूल जाओगे। दुखों को पार करने का एक ही तरीका है, बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर व्हाट यू हैव, एंड देन यू विल बी हैव द पावर टू क्रिएट मोर इन योर लाइफ। फिर आपको और भी अच्छी गाड़ी मिलेगी, और भी अच्छी जॉब मिलेगी, और भी अच्छा घर मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। बट ग्रेटफुल होना जरूरी है। रोते हुए लोगों को कुछ नहीं मिलता, कंप्लेन करते हुए लोगों को कुछ नहीं मिलता, ब्लेम करते हुए लोगों को कुछ नहीं मिलता, जो है वो भी चला जाएगा। करेक्ट? So you have to understand the basic laws of life. These are the energy laws of life. So you have to follow that. Right. तो आपके फेयर दुख कम कर दिए मैंने, आपके दुख कम कर दिए मैंने। और क्या परेशानी बताइए? नेगेटिव इमोशंस में और क्या एक्सपीरियंस करते हैं आप? कितने लोगों को गुस्सा आता है? कितने लोगों को गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है या आता था? So if you want to distinguish something, आता था। हाँ। तो कई जन्मों से आता था और कई सालों से आता था। अभी थोड़ी सी आप 2-3 साल से जितने जब से आप स्पिरिचुअलिटी में आपने कदम बढ़ाए होंगे तो आपके शायद एंगर खत्म हो गया होगा। बट एंगर इज वेरी कॉमन इमोशन। करेक्ट? बचपन में भी आपने माँ बाप बोलते रहे इसमें बड़ा गुस्सा है, इसमें बड़ा गुस्सा है। अरे बच्चा और शशि सर, अगर जिसको अगर अभी भी बहुत गुस्सा आता है तो हाँ गुड, आ रहे हैं, गुस्से भी आ रहे हैं, तो होल्ड राइट। तो या तो आपको पिछले जन्मों में बहुत आता था या पिछले सालों में बहुत आता था या अभी भी आ रहा है ना। तो गुस्सा इज ए प्रॉब्लम दैट वी नीड टू हैंडल। अब इसको इमोशन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे देखना। तो गुस्से को हैंडल नहीं करना है। गुस्से को हैंडल करने का मतलब है आप अंधेरे में जाके अंधेरे में जूझ रहे हो। अंधेरे को नहीं जूझना, हमको वो स्विच ढूंढना है जैसे लाइट आ जाए। करेक्ट? तो गुस्से को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना है? तो गुस्सा अक्सर क्यों आता है? गुस्से का अगर आप साइकोलॉजी समझो, गुस्सा क्यों हो रहा है? समथिंग इज हैपनिंग व्हिच यू डोंट लाइक, something which is not going our way, समथिंग इज नॉट गोइंग माय वे। और फिर आप अपने डायलॉग से पहले से तैयार होते हैं, माय वे और हाईवे। ईगो आ गया उसमें। फिर जैसे बाप बेटे को बोलते तो जायदाद से दखल निकाल दिया, बाहर कर जाओ। आइदर इट इज माय वे, यू स्टे इन दिस हाउस ऑन माय टर्म्स, और यू मूव टू द हाईवे, जाओ निकल जाओ, तो अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये समथिंग इज नॉट हैपनिंग माय वे, दैट्स इट। तो इसमें क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? समझिए पहले तो वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं है। बाहर की दुनिया वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो। एंड बाय द वे ये कभी होगा ही नहीं। तो यू कैन बी परमानेंटली एंग्री फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू वांट। राइट? सोचिए, देखिए, बॉस ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको गुस्सा आ रहा है। मेरे जूनियर्स ऐसा नहीं करने चाहिए, आपको गुस्सा आ रहा है। मेरा हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गुस्सा आ रहा है। पड़ोसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, गुस्सा आ रहा है। राइट? मेरे पास वो गाड़ी नहीं है, अब आप अपने आप से गुस्सा हो रहे हो। या तो आप अपने आप से गुस्सा हो रहे हो या औरों को गुस्सा दिखा रहे हो, यही हो रहा है। राइट? तो क्या हो रहा है? यू आर फेसिंग ए सिचुएशन और पीपल और थिंग्स which are not in your liking, which is not your way. Acceptance is the word. लाइफ को एक्सेप्ट कर लो जो है। ये जो है मेरी लाइफ में, ये मेरे कर्मों के हिसाब से मिला है। आज की डेट में इससे बढ़िया और नहीं हो सकता है। आज मेरे को ये जॉब मिला है, ये बॉस मिला है, ये नीबर मिला है, ये फ्रेंड मिला है, ये हस्बैंड वाइफ मिले, ये बच्चे मिले हैं, ये मेरे कर्मों के हिसाब से परफेक्ट हैं। सारे लोग मेरी लाइफ में परफेक्ट हैं, द वे दे आर एंड द वे दे आर नॉट। एक्सेप्टेंस विल न्यूट्रलाइज द एंगर इन योर लाइफ। सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा, एक्सेप्ट कर लोगे तो गुस्सा खत्म हो गया। मेरा बेटा जिद्दी है, मेरा बेटा दिन में 1 घंटा पढ़ता है, ये सिचुएशन है, इसको पहले एक्सेप्ट करो। तो जहां आपने एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा लिया, आपका एंगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यस और नो? लाइफ में जाके देखिए, अपनी लाइफ से शेयर करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो जो कल नहीं थे, पिछले हफ्ते नहीं थे, अगर कोई शेयर करना चाहें तो शेयर करें, बट इस एक्सपीरियंस को पकड़ना है आपको। ठीक है? तो अगर डर लग रहा है, आपको फियर है या एंग्जाइटी है, तो आपका फेथ नहीं है भगवान में, डिवाइन में, फेथ बढ़ाइए। दूसरा, अगर आपको दुख हो रहा है तो अपना ग्रेटफुलनेस बढ़ाइए, अपनी ग्रेटिट्यूड बढ़ाइए। वेलकम संजीव। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो एक्सेप्टेंस बढ़ाइए अपनी। आपको लाइफ में चीजें, सिचुएशंस को, लोगों को और थिंग्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, चाहे वो आपके पास हैं या नहीं है।
First, accept the life that you have, that this is the perfect life or the perfect situation or the perfect people in my life, the way they are and the way they are not. That is acceptance. Without loss of power and freedom. ना आपकी पावर लूज होनी चाहिए, ना आपकी फ्रीडम लूज होनी चाहिए. That is acceptance. तो एंगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा. अब इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ी सी शेयरिंग ले लें कि लोगों को क्या समझ में आया है. तो गोल्डी जी, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? आपको कुछ क्लैरिटी आई कि लाइफ में गुस्सा आ रहा है तो आपकी एक्सेप्टेंस लेवल बिल्कुल लो है, बल्कि एक और चीज बोलूंगा, आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई है. Yes, sir. एक्सपेक्टेशन अगर हाई होगी और एक्सेप्टेंस लेवल लो होगा तो आपको गुस्सा आना ही है. तो इसको उल्टा कर दीजिए, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा दीजिए, तो एक्सपेक्टेशन लेवल मिनिमम रखिए लोगों से. आप देखेंगे लाइफ में आपको गुस्से की जगह पे आप पीसफुल होना शुरू हो जाएंगे. जहां आपका बीपी बढ़ रहा है वहां पे आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा. You will experience more love, more peace, more happiness in your life. Yes. Okay, let's have Okay, some sir. sharing. Let's have some sharing. तो गोल्डी जी, आपको शेयर करना चाहेंगे या स्मृति जी भी शेयर करना चाहेंगे इन तीनों इमोशन को कैसे हमने न्यूट्रलाइज किया? एनीथिंग फ्रॉम योर लाइफ, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? देखिए, जब तक आप अपनी लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे ये सब थ्योरी ही रह जाएगा. विजडम चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो फटाक से इसको अपनी लाइफ में फटाक किसी इंसिडेंट से जोड़ दीजिए. एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाएगी, वो आपके साथ हमेशा रहेगा. राइट? ओके, तो who wants to share? And Sanjeev, would you like to add something to it? We were talking of how to neutralize anger, and what I shared is that level of acceptance has to increase and level of expectation has to decrease. Then you will be free from the anger. That's what I have shared. And so if you want to add something or share something, welcome. Perfect, absolutely. And anybody sharing their life experience, then I can actually add something. When you got angry and how you covered up and what happened, if you share, then it will make more sense. Otherwise, this will just be a theory. So let somebody share about it. Oh, great. Absolutely. Right. तो सब लोग यहाँ पे अपने गुस्से को ओवरकम करके बैठे हुए लग रहे हैं, तो किसी की शेयरिंग आ नहीं रही है. Okay. So keep that in mind and share that whenever it comes to you, because we will move on. Definitely, we are not going to. Yes, Preeti. When nobody is speaking, तो कुछ तो experience share करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे. बिल्कुल करिए. Because without interaction तो सब चीजें वही इधर ऐसे घूमती जाएंगी. When I was in school, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे हाथ बहुत उठते थे क्योंकि मुझे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा बहुत आता था. और मुझे किसी को मारते हुए या मतलब फिजिकल वायलेंस पे भी उस लेवल तक का गुस्सा आता था. बस जैसे जैसे धीरे धीरे करके आई एंडेड अप, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा IQ मेरा बहुत अच्छा नहीं था. आई वाज वेरी बैड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, साइंस, एवरीथिंग. टेक्नोलॉजी आज भी समझ में नहीं आती है, टू बी ऑनेस्ट. तो भाई हाँ, मेरा SST वगैरह अच्छा था, तो आई टुक ह्यूमैनिटीज एंड आई वाज, तो मेरा फिलोसफी, आई ऑप्टेड फॉर फिलोसफी एंड साइकोलॉजी. फिलोसफी जब पढ़ने के बाद वो ऑटोमेटिकली गुस्सा धीरे धीरे करके सबसाइड होता चला गया, इन द सेंस कि तब समझ में आने लगा कि जो जैसा होना है वैसा ही होना है, कि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलना. बिकॉज भगवत गीता मैंने फर्स्ट टाइम क्लास 11th में पढ़ी थी, व्हेन आई वाज आई थिंक 15-16. सो तब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी. तब उसके बाद फिलोसफी वगैरह पढ़ने के बाद तब ये चीजें एक्सेप्टेंस आ गई थी. लेकिन गुस्सा आज भी आता है, मैं ये नहीं कहती कि पूरा ओवरकम कर लिया, बट यस, लेकिन हाँ, गुस्से का जो सिवियरिटी थी वो ऑटोमेटिकली वो जो कहते हैं 100% से इट इज नाउ 10 to 20%. क्योंकि अब ये पता है कि जो जैसा होना है वैसा ही होना है. जबरदस्ती के पीछे पड़कर नाक करके कुछ नहीं होने वाला, बच्चों के पीछे पड़कर भी कुछ नहीं होने वाला. उन्होंने वही करना है जो करना है, तो वो एक्सेप्टेंस आ गई है. So great. So what Preeti has shared is exactly what we discussed. कि जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एंगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा. Yes, Sanjeev, you want to add something? No, that's a lovely experience, but this is something what Preeti ji shared is the past experience. Can we have somebody who can share the present state of anger, because that would make a lot of sense. Preeti ji ने तो overcome कर ही लिया. So let's. पता है मैं आपको बहुत कम गुस्सा करती हूँ, मैं ये नहीं करती, लेकिन हाँ बहुत कम. So Tony wants to share. Yes, Tony, go ahead. Well, I won't go into my school life or anything of that sort, but as per Sanjeev,
I'm Current- talking current of life, just recently. I used to get angry on many things like घर में अगर कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं होती थी तो मैं गुस्सा करता था, और because of having such problems in my marital life, I used to get angry on a lot of things. But somehow or the other, I would not say only because of spirituality, but I started realizing that this anger is not helping me at all. Rather, it was, causing a lot of destruction in my personal psyche. So I stopped getting angry, and यहाँ तक कि मेरा इतना बुरा हाल होता था कि कई बार अगर मान लो खाने में नमक या मतलब कोई टेस्ट मेरे हिसाब से नहीं होता था तो वो भी गुस्से में निकलता था. सो आई रियलाइज दैट नहीं यार, इंस्टेड के जो खाना तुम्हारे सामने प्लेट में आ रहा है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री ऑन समबडी हु कुक द फूड, स्टार्ट बिकमिंग ग्रेटफुल फॉर द फूड दैट इज बीइंग सर्व्ड ऑन योर प्लेट, बिकॉज तुमने तो बनाया नहीं है, you didn't even make any effort to do it. So I actually started thanking people before I started, even putting the first girai or niwala in my mouth. I started thanking people के भाई जिस बंदे ने ये अनाज बोया है और जिस बंदे ने मुझे खाना बना के खिलाया, टेबल पे सर्व किया है, I am grateful to each and every one of them, and God bless them abundantly. And this food, if it goes inside me, should benefit my body from multi aspects. So वो मैंने करना शुरू किया, and अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुस्सा दूर दूर तक आता ही नहीं है. मतलब like there are many situations even today that happen in my life that can cause me to burst out, but it just simply वो गुस्सा आता ही नहीं है. I don't know what has happened really. There is a total transformation regarding my temperament, that is for sure. That is very very sure of that. I'm very sure of that कि अब मैं गुस्सा नहीं आता है मतलब किसी बात पे भी. ठीक है, this transformation you saw in how, this transformation you saw in last how many months or years? Transformation for the last I think I would say 3 years. Okay. 3 years, Amit bhai. Good, Tony. That's it. Lovely sharing. Yeah. Again, Sanjeev, this is pertaining to the victories of having transformed their emotions. So we have nothing much to contribute here. Only appreciate, and it's a wonderful experience, by the way. No. Why don't you have things to contribute? Of course, your ये जो हमारी basic healers program and the spiritual journey and this Reiki journey, whatever we are doing, this has gone miles into the making of this calming me down and putting a lot of positivity in my life. नहीं तो मैं तो अब तक बिखर चुका होता. मतलब I could have been a total depressive case. I was going into depression. अगर Shashi, have you discussed about EQ, IQ, SQ and CQ? हाँ, we just talked about the terms. अभी हम IQ से EQ पे आए हैं सिर्फ. Perfect. तो टोनी भाई, आपने और प्रीति ने जो अभी शेयर करा ना, just I would like to share. Shashi, can I? Yeah, sure. Yeah, why not? If I ask everybody out here, Amit, thank you very much, Goldie, Smriti, Kavan, I have question to all of you. गुस्सा ज्यादा किसको आता है, हाई IQ वाले को या हाई EQ वाले को? I think high EQ वाले को. Okay, Tony says high EQ. Anybody else? High I don't IQ. know, but मेरा IQ इतना अच्छा नहीं है. EQ ज्यादा अच्छा है शायद. Preeti ji says IQ. Okay, how about you, Kavan? EQ sir, मुझे लगता है EQ. Okay, Goldie, how about you think? IQ level. IQ. Okay, and Smriti and Amit? Sir, I would say EQ. EQ. Okay, it's all मतलब equal ज्यादा दोनों का वेट है जी. अब अमित के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ बेटे ले जाते हैं. तो गुस्सा किसको ज्यादा आता है? That is the question. क्वेश्चन ये कि गुस्सा किसको ज्यादा आता है, IQ ज्यादा हाई IQ वाले को या हाई EQ वाले को? EQ. Anger is the form of emotion. Perfect. Yeah. Absolutely. Amit is absolutely right that
anger is an emotion and emotion means EQ. तो जिसका EQ हाई होगा उसको गुस्सा आएगा. And just for the डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपने कभी कभी किसी को देखा कि किसी को इतना गुस्सा आता है कि उठा के चीजें फेंकते हैं? हाँ, I used to do it when I was younger. Yes. तो जो मैं अभी भी कर रहा हूँ. मैं अभी एक ग्लास इसका टेबल का अभी मैं वही सोच रहा था सर, पूरा शांत हुआ था गुस्सा, अभी पता नहीं इट इज गोइंग आउट ऑफ माय कंट्रोल. ये जो टेबल है ना सर, इसका अभी ये टूट के अभी फिर से ग्लास अभी शीशा डाला है फिर से. सो आई एम फियरिंग फॉर माई सेल्फ. ये कब की बात है कवन? ये जस्ट 1 हफ्ता हो गया सर. ये चेयर लगा. शशि, दिस इज द केस वी शुड डिस्कस ना. दिस इज द लाइव केस एक्चुअली में. Right. तो सर मैं सोचा शायद मेरा बॉडी वेट बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए आई एम माय थ्रेशोल्ड, एंगर थ्रेशोल्ड हैज कम डाउन. तो मैं अभी व्हाटएवर मैं जॉगिंग वो सभी अभी वॉकिंग सभी शुरू किया हूँ, क्योंकि बहुत अभी मेरा काबू में नहीं है सर गुस्सा. मींस इट्स वेरी डेंजरस. So Kavan, thanks for sharing and for everybody's knowledge. Shashi, can I speak for 2-3 minutes? Sure. IQ और EQ वाले में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. You could easily connect and then we will talk. I'll give you one liner for even controlling it. Not control it, but to really manage it, I would say. जिसका EQ हाई होता है ना, उसको पहले इमोशंस आते हैं हाई, यानी कि उसकी बॉडी में पहले इमोशंस आएंगे. बॉडी की एनर्जी बहुत हाई होगी, बॉडी की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, एंड इसीलिए फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्शन थ्रू वर्ड, थ्रू बॉडी, एनीथिंग वो ज्यादा होगा सबसे पहले, क्योंकि हाई EQ वाला पहले बॉडी से काम करता है, फिर ब्रेन से या माइंड से या थॉटफुल काम करता है. अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी क्लियर. एक हाई EQ वाले को जब कुछ डिस्टरबेंस होती है, उसका बॉडी रिएक्शन ऐसा होता है कि उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं जो करने जा रहा हूँ इससे कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा. उसका पहले एक्शन होगा, वर्बल और फिजिकल, व्हाटएवर इट इज. हाई EQ वाले के कंपैरेटिव जब हाई IQ होता है, उसका दिमाग हमेशा पहले, IQ मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब नफा नुकसान. वो कुछ भी एक्शन लेगा, चाहे गुस्सा आ रहा है, खुशी हो रही है, पार्टी देनी है या तोड़फोड़ करनी है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में कैलकुलेशन आती है, मैं उठा के अपने मोबाइल को फेंकूंगा, ओ माय गॉड, इससे तो 40,000 का नुकसान हो जाएगा. कवन ने जो टेबल का शीशा तोड़ा है, इट इज नॉट बिकॉज कि कवन को उसकी वैल्यू पहले दिमाग में आई, कवन को उसकी वैल्यू बाद में दिमाग में आई. फाइनेंशियल वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट. So understand one basic difference, जिसको गुस्सा इस तरह का आता है, that's high EQ वाले, जिसको पहले फिजिकल बॉडी काम करती है, फिर मेंटल बॉडी उस पे एक्शन कॉन्शियस लेवल पे सोचना शुरू करता है. जो IQ वाला होगा वो गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा एक्सप्रेसिव भी कैलकुलेटिव करेगा. एंड अमित जी ने जो बिल्कुल सीधी सी बात बोली ना कि इट इज ऑल अबाउट इमोशन, एंगर इज ऑल्सो एन इमोशन. तो कवन, are you okay sharing with everybody what happened when this you broke this glass? Sir, actually my sister is also in the spiritual journey, sir. So she thinks that okay, only her guru is the best. Okay, so she had come to our home. तो उसका डिस्कशन शुरू हुआ, वो बीच में कहाँ चले गए, नथिंग, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, वेरी वेरी फॉन्ड. तो वो ऐसा ही, पता नहीं सर क्या हुआ, मैं कभी ऐसा नहीं हुआ था लाइफ में. मैं यूजुअली होता है, मींस वो ये शीशा तोड़ना सभी कभी नहीं हुआ था. तो मुझे लगा शायद मेरा माय पेशेंस लेवल हैज गॉन डाउन. आई डोंट नो, somehow sir that happened all of a sudden. It was nothing intentional, we are very close to each other, but somehow I couldn't control. Then उसके बाद भी मुझे लगा मेरा गुस्सा अभी it has gone out of control. पहले से भी था वो, फिर में बहुत पेशेंस था मुझे, अभी पता नहीं. तो इसलिए सोचा शायद मेरा बॉडी वेट ज्यादा हुआ होगा, शायद उसके लिए भी शायद वो हो रहा है लगा. Allow me to address this, please. संजीव भाई आप म्यूट पे हो, एक सेकंड लूंगा कि एक नए तरीके से बात बोलूंगा जो कवन भाई ने बताई है. You know, spiritual beliefs इतने strong and close to heart and soul होते हैं कि whenever there is a disagreement with somebody,
it actually hurts a lot more deeper than probably any other disconnect that you have had with somebody. समझ आ रहा है? तो ये एक जो spiritual belief होता है ना, when somebody talks against it and somebody instead of believing wants to make you, makes you feel कि नहीं आपके belief गलत है because they have a different guru. तो वो मैं बता रहा हूँ उसमें anger का सबसे intense reason हो सकता है because you feel very close to your spiritual beliefs और कोई उसको shut down करे, it can actually, so don't question yourself maybe, because I think this was the deepest hit that you got because आपने सबसे ज़्यादा शायद इससे ज़्यादा passionate कभी किसी और चीज़ के लिए feel नहीं किया होगा in recent times. You get your point? और या अमित सर उसके बाद ये हुआ कि हेलो go ahead. तो ऐसा हुआ कि सब लोग उसको सपोर्ट किया तो somehow I felt helpless and मेरा मॉम भी उसको सपोर्ट किया, मेरा वाइफ भी, सब, और एक्चुअली ऑल ऑफ अ सडन एक ही बार सब आया मेरे ऊपर, सब एक साथ हुआ, तो डोंट नो somehow ट्रिगर्ड सर। तो बाद में लगा मुझे मेरा पेशेंस लेवल एक्चुअली बहुत कम हुआ है, एक्चुअली आई कुड हैव हैंडल्ड इन अ डिफरेंट वे लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद भी बहुत सारा दो तीन बार फिर से वो इंस्टेंस आया वैसे भी विथ माय वाइफ ऑल दोस थिंग्स, देन मुझे लगा मैं ही शायद मेरा गुस्सा अभी थोड़ा काबू में नहीं है, ऐसा सोचा सर। Thanks Kavan for sharing. Thanks and Amit, thanks for sharing this. Kavan, can I ask you one thing? हाँ सर। Shashi, sorry. No, go ahead. You're going absolutely good. And this is for everybody. Kavan, आजकल घर में बैठे हो या कहीं बाहर जाके कुछ काम ज्यादा कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? नहीं सर, अभी तो फुल लॉकडाउन है सर यहाँ पे। Perfect. Understand everybody. मैंने क्वेश्चन कवन से क्यों बोला है, this is for the knowledge of everybody. इन्होंने जब शीशा उठा के फेंका तो कौन से बॉडी पार्ट से शीशा उठाया होगा? हाथों से। Obviously हाथों से। और हाथों का काम क्या होता है? बीइंग इन एक्शन। और एक फिजिकल आदमी जो होता है, जो EQ हाई होता है, अगर उसके बॉडी में जिस बॉडी पार्ट में एनर्जी ज्यादा होती है, अगर उसका यूटिलाइजेशन कम होता है, वो उस बॉडी पार्ट को एक्शन में डालता है। And Kavan, you have to really understand and analyze. It's not about body weight. It's nothing. You are a person who is somewhat action oriented. आपने अगर देखो तो बहुत टाइम्स आपका हैंड का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है थोड़ा। And this gave energy to that particular moment कि शीशा क्यों उठाया कि जहाँ पे इसको कुछ एनर्जी मिले, हाथ को कुछ लगे, मैंने करा है। You had an option to throw anything else, ना? Why only this? Because your body anatomy talks about जिससे उस बॉडी के पार्ट को रिलीफ मिलता है। And that's where your high EQ shows that that's the point you should be immediately aware कि मेरे हाथों ने कुछ एक्शन लिया। कोई आदमी होगा मालूम है, हाथ नहीं यूज करेगा, पैर मारेगा, इसका मतलब उसके लेग्स में इश्यू आ रहा है, उसके लेग्स की मूवमेंट की कमी है। Are you able to connect to my point, everybody? Yeah. And high So yes, EQ I के लिए can very well connected. oh my God, स्मृति ने बिल्कुल कनेक्ट फील करा है। मैंने भी किया भैया। Absolutely. अगर आप लोग कर रहे हो तो इसको समझ। मैं तो सुबह शाम ये घर में देख रही हूँ ना, तो now I can understand really well. Okay, right स्मृति, right. Now high EQ को करना क्या है? सिंपल, ये तो आपको एक रीजन समझ में आया, करना क्या है। हाई EQ का एक ही काम है, सिर्फ आपको अगर ये पता चल जाए आपका कौन सा बॉडी पार्ट एक्साइटेड है कुछ एक्शन लेने के लिए, उस बॉडी पार्ट को किसी काम में लगा दो। सो कवन, मॉर्निंग, इवनिंग, ये जो हाथ घुमाने वाली एक्सरसाइज होती है ना, ऐसे वाली, डू दैट एंड डू दैट टिल योर हैंड फील्स टायर्ड, you will feel relieved. And that's what Shashi has been talking about, IQ and EQ. कुछ नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। Good news is EQ high के लोग वो होते हैं जो they are close to the God, close to the supreme power, because उनको नफा नुकसान नहीं समझ में आता इतना। IQ वाले पैसे में लगे रहते हैं नफा नुकसान में।
That's it, Shashi. I wanted to say sorry. Thank you, I thank just you, wanted- Sanjeev. It was wonderful, great. So good Very sharing and absolutely brilliant analysis, Sanjeev. Kavan, I would like to take this on. Yeah, Amit, you want to share something? नहीं, वो संजीव सर से एक और इसी बारे में कि जैसे हाथ और पैर का एग्जांपल दिया, सो जैसे हाथ की एक्टिविटी होगी, सो फॉर एग्जांपल किसी को गुस्सा आता है हाथ का, तो ऐसे करें. गिव मोर एग्जांपल्स, लेट्स से, बिकॉज़ लेट्स से somebody is driving or using the feet to break things. Yeah, so let me tell you this, दो चीजें होती हैं हाथों का. बेसिकली इट इज दिस, वी कॉल दैट फाइट और फ्लाइट सिंबल. अगर हाथ और पाँव की बात करें, सबसे ज्यादा बॉडी पार्ट जो हाथ और पाँव हिलते हैं, राइट? तो हाथों से आप फाइट करते हो, पाँव से आप फ्लाइट करते हो. तो जब भी फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम में जाएगा बॉडी, तो आपके हाथ और पाँव हिलेंगे. मार करते हो तो हाथ और पाँव से ही करते हो आप, राइट? तो फाइट भी करोगे या फ्लाइट भी करोगे, आपके हाथ और पाँव हिलेंगे. इसीलिए आजकल लॉकडाउन का मामला है, तो स्विमिंग नहीं कर सकते, आप जिम नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट डू सम योगा एक्सरसाइजेस. हाथ और पाँव को इतना हिलाइए. और अगर EQ आपका हाई है, इमोशन हाई है, इमोशन इज व्हाट? एनर्जी इन मोशन. आपको मोशन नहीं मिल रहा है तो आप टेबल तोड़ोगे. तो हाथ और पाँव को अच्छे से हिलाओ, अच्छे से हाथ पाँव की कसरत करो, सो योर इमोशन विल गेट डिस्चार्ज और आप उसको कंट्रोल कर पाओगे. क्योंकि हाई इमोशन अगर है आपका, हाई EQ है, इमोशंस को उसको क्या बोलेंगे आप, उसको लेट गो करना है कहीं से. तो फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द इमोशन. अब अगर आपको पता लग गया कि मेरे हाथों की कसरत करनी है मेरे को, तो आप उसके लिए कुछ करोगे. क्यों? अब आपको लेट गो करना है. तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व करने के बाद आपको उसको एक्चुअली में क्या करना है, यू हैव टू चेक. ऑब्जर्व करने के बाद इमोशन आ रहा है, राइट? देन यू हैव टू फिल्टर. वी से उसके 3 स्टेप हैं. इमोशन को अगर आप देखोगे कैसे हमने डिस्पेल करना है या उसको डिस्चार्ज करना है. फर्स्ट यू ऑब्जर्व द इमोशन, देन यू हैव टू एक्चुअली हैव दैट फीडबैक बोलो उसको, या फिर आप जो भी बोलो उसको, ताकि आप उसको देख रहे हो, यू आर सीइंग दैट इमोशन, एंड देन यू लेट गो ऑफ दैट. इमोशन को छोड़ना है. तो एक तो फिजिकली आप कर सकते हो इसे, क्योंकि जैसे संजीव ने अभी बताया, इमोशन ज्यादा होगा तो उसको एक्शन में आना जरूरी है. तो तोड़फोड़ करने से अच्छा उसे एक चैनलाइज करो उस एनर्जी को इस तरीके से कि वो कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो. देन योर इमोशन विल बी इन कंट्रोल. तो पहले आपने अगर इमोशन को कंट्रोल कर लिया, देन यू विल मूव ऑन टू द लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग दैट इमोशन एंड बिकमिंग इमोशनली इंटेलिजेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड, EQ, हाई EQ से लेके आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, ताकि आपका एंगर का इमोशन जो है वो ट्रांसफॉर्म होके एक्सेप्टेंस वाली इमोशन में आ जाए, सो दैट यू एक्चुअली एक्सपीरियंस लव, peace and happiness. That is where you will get connected with the divine qualities. तभी आप, वरना क्या होगा, इमोशन क्या है मानते हैं, इमोशन सेंटर क्या है, हार्ट सेंटर है, करेक्ट? इमोशन में अगर नेगेटिव इमोशन होगा तो कहाँ जाओगे आप ईगो की तरफ जाओगे, तमोगुण में जाओगे. ट्रांसफॉर्म कर लिया तो क्या होगा, पॉजिटिव इमोशन में आओगे, आप सतोगुण में जाओगे, ऊपर की चक्रास में जाओगे. तो इमोशन को गिरना नहीं है, नेगेटिव इमोशन को ऑब्जर्व करना है, उसको फिल्टर करना है. फिल्टर मीन्स अभी बता दूंगा कैसे है. पहले ऑब्जर्व करना है, फिर फिल्टर करना है, और फिर लेट गो करना है. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक? एनी डिस्कनेक्ट? क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट द टेक्निक क्या है अभी बता दूंगा. बड़ा मजेदार है. आई हैव डन दैट फॉर माय सेल्फ, सो इट इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग रादर. पहले इमोशन को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे, और फिर उसको लेट गो करेंगे. ये है प्रैक्टिकल चीज कैसे करनी है. ठीक है, वन वे तो यू नो, एनर्जी को निकाल दो बाहर, हाथ और पाँव को चलाओ, एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाओगे. दूसरा क्या है, आपने इमोशन ऑब्जर्व किया. अब जैसे आप चाय बनाते हो, चाय को छानते हो, क्या करते हो, चाय की पत्ती को देखते हो, उसको फिल्टर करते हो, और फिर उसको लेट गो करते हो, डस्टबिन में करते हो. क्लियर है? ये प्रोसेस क्लियर है? पहले आपने ऑब्जर्व किया, चाय की पत्ती है, उसको फिल्टर किया, फिल्टर में आ गया, उसको छान के बाहर फेंक दिया, चाय रेडी है, लव, पीस एंड हैप्पीनेस रेडी है आपके लिए. ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हैं? आपको बताती हूँ, आप जो मुझे बोल रहे हो, आई विल शेयर इट विद एन एग्जांपल नाउ. hold on, let me complete this whole thing. Hold on. ठीक है, तो Kavan, if you're talking of this observation, filter and let go, okay, अब इसको कैसे करना है. आपने ऑब्जर्व किया कि एंगर आ रहा है, अब आप उसको फिल्टर कैसे करेंगे. यू हैव टू एक्चुअली लुक एट द सिचुएशन कि क्या है, किस पे गुस्सा आ रहा है. एंड अक्सर आप देखोगे, आप गुस्सा उस पे दिखाते हो जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. ओके, गुस्सा आपको आता नहीं है, आप गुस्सा जानबूझ के करते हो उन लोगों के साथ जो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते. ट्राई दिस, 90% ऑफ द टाइम इट इज लाइक दैट.
आप 5 साल के अपने 10 साल के बच्चे को डांट दोगे, आप अपने जूनियर को डांट दोगे, बॉस को कभी डांट के देखा है? अपना गुस्सा दिखाया है बॉस को? नौकरी जाएगी अगले 5 मिनट में, EMI कैसे भरोगे? तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका IQ लेवल काम करने लग जाएगा, सर्वाइवल आ जाएगा, बेटा सड़क पे आ जाओगे। तो गुस्सा हम उसको दिखाते हैं जो हमसे वीक है, जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कर लेगा? बच्चे को 2 थप्पड़ मार दिया, क्या कर लेगा? रो लेगा, करेक्ट? थोड़े से इमोशनल ब्लॉक्स बन जाएंगे, उसके इतनी चिंता नहीं करते, बट वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना। तो अक्सर हम गुस्सा उनको दिखाते हैं। तो यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व, गुस्सा आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको करो और फिर उसे फिल्टर करो। फिल्टर करने का मतलब क्या है? यू हैव टू एक्चुअली, आई टेल यू दैट एक्सीलेंट वे टू डू इट। आप सिचुएशन को रिव्यू करो, अब तो हो गया ना सिचुएशन, रिव्यू करो उसे। जब वो पल आया जहां इमोशन आए, उसको होल्ड करो, ब्रीथ इन, होल्ड, और जब भी आप ब्रीथ आउट करोगे दैट विल बी लेट गो। लेट मी टेल यू, breathe out is the most powerful way of deleting your emotion. I'm repeating this. Breathe out is the most powerful way of deleting your emotion, negative emotion. Okay? तो जैसे फाइल्स को हम देखते हैं, फाइल अगर किसी फाइल में, आपके फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स हैं, आपको फाइल डिलीट करनी है, क्या करोगे? पहले आप उसको ऑब्जर्व करोगे, यानी कि फाइल खोलोगे, फोल्डर खोलोगे, फाइल में जाओगे, देखा ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, टिक 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 टिक, एक देखा एंगर, इसको डिलीट करना है, तो उसको सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके डिलीट बटन दबाओगे, करेक्ट? तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम करना है, ऑब्जर्व करना है क्यों एंगर आया, उसको जरा सा आपने फिल्टर करना है, और उसके बाद ब्रीथ आउट के साथ डिलीट बटन दब जाएगा। ब्रीथ आउट, योर एंगर विल गो। अंडरस्टैंड? सिचुएशन को देखा, फिल्टर किया, और डिलीट बटन में आप ब्रीथ आउट करो, निकल जाएगा। 6 बार 7 बार आप फास्ट ब्रीथ आउट करोगे, यार इमोशन विल गो, एनी इमोशन विल गो। आपका माइंड इतना पावरफुल है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन चूज व्हाट इमोशन यू वांट टू एक्सपीरियंस। समझिए मेरी बात को। यू आर गॉट दैट डिवाइन, यू कैन से एप्लीकेशन, दिस इज अ डिवाइन एप्लीकेशन यू हैव, माइंड। यहाँ पे आप कोई भी इमोशन एक्सपीरियंस कर सकते हो एज पर योर चॉइस। फॉरगेट द आउटसाइड सिचुएशन, बाहर की दुनिया को भूल जाओ। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति कुछ नहीं दे सकते आप, ये सिर्फ ट्रिगर करते हैं। आप अपनी मर्जी से इमोशन को एक्सपीरियंस करते हो, इट इज योर चॉइस। आप लव, पीस, हैप्पीनेस भी कर सकते हो, आप फियर, एंगर, हर्ट भी कर सकते हो। इतनी पावर है आपके अंदर। तो यू हैव टू जस्ट चूज व्हाट इमोशन यू वांट टू डू, एंड दिस इज व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जो इमोशन आ रही है उसको ऑब्जर्व करो, उसको फिल्टर करो, उसको लेट गो करो। नेगेटिव को लेट गो करते जाओगे, पॉजिटिव अपने आप इमर्ज हो जाएगा। सिंपली लाइक सही, अगर आपके पास 100 गाने हैं और आप 5 गाने सुनते हो रोज, तो वही 5 गाने बार बार आएंगे और वही 5 गानों की आपको हैबिट हो जाएगी। तो अगर आप फियर, एंगर, वरी, एंग्जाइटी और हर्ट को लेके चल रहे हो, तो वही लाइफ में चलता रहेगा। उसकी जगह पे अगर आप लव, पीस, हैप्पीनेस, ग्रेटफुलनेस एंड फॉरगिवनेस लेके चलोगे, तो वो आपकी लाइफ में आता रहेगा। मेकिंग सेंस? Yes, sir. Right? This is how you have to train yourself and become emotionally intelligent, so that your high EQ होने के बाद भी emotional intelligence आपका सही होगा, चाहे इमोशन आपके हाई हो या लो हो। क्लियर है? तो लो इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करके हाई इमोशन में, यानी कि पॉजिटिव इमोशंस में आना है। राइट? I will have some people share, but first, Smriti, you wanted to share something. Go ahead. सर अभी थोड़े दिन पहले की बात है, व्हाट आई कुड सी वाज कि अब हर्षद सारा दिन कुछ ना कुछ शरारत करता है, बिकॉज घर पे रहता है, कुछ है नहीं, कभी ये तोड़ रहा है, कभी वो फोड़ रहा है, कभी पेपर काट रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो 1-2 दिन क्या हुआ कि उधर से मम्मी पापा भी गुस्सा हो रहे थे कि तू समझाती नहीं है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। तो मुझे 2 दिन बहुत गुस्सा आया और मैंने बहुत जोर से उसको डांट दिया। अब दिस इज एक्चुअली नॉट द सॉल्यूशन। तो क्या हुआ, मैंने 2 दिन तो कर दिया, लेकिन उस एक दिन रात को बैठकर मैं सोचती रही कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या मैं एक्चुअल में हर्षित के उस एक्ट से गुस्सा थी? नहीं, मैं उससे गुस्सा नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो हाथ पैर चला रहा है, इधर से उधर कूद रहा है, तो उसका रीजन सिर्फ ये है कि अब वो घर में है, पहले वो स्कूल जाता था, इधर उधर घूमता फिरता था, तो वो सब उसकी एनर्जी यूज हो जाती थी, तो वो क्या करेगा घर में। अभी वो अगर कलरिंग कर रहा है तो कलरिंग ही कर रहा है, कटिंग कर रहा है तो पेपर ही काट काट के फेंके जा रहा है।
तो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, तो वो अपनी एनर्जी कहीं तो यूटिलाइज करेगा। फिर सोचती रही, फिर मुझे गुस्सा क्यों आया जब मुझे ये बात पता है। तो देन आई रियलाइज कि मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया कि हर्षित ऐसा करता, मुझे गुस्सा इसलिए आया कि मैं कुछ ऑफिस का काम कर रही थी और 2 लोग उधर से चिल्ला रहे थे कि तू समझाती नहीं है, तू ये नहीं करती और वो नहीं करती। आई एंड as soon as I realized it, अब वो जो मर्जी बोलते रहे, मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस चुपचाप से उनकी तरफ स्माइल करके देखती रहती हूँ। और वो मुझे कहते हैं तेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तेरे को बाद में पता चलेगा इसका क्या होगा। तो Right. जब आप शेयर कर रहे थे कि पहले समझो क्या है, फिल्टर करो और फिर एक्ट करो, so I can actually relate it. Absolutely brilliant, Smriti, and this is absolutely the way to actually analyze it. And let me tell you, this delete button or breathing out is something which I have experienced very, very powerful. और कभी-कभी तो like I will stop everything else, and जब तक वो emotion पूरा breathe out नहीं हो जाता, and then I don't get a smile back, and the real genuine smile, artificial smile नहीं, तब तक breathe out करते रहो. Punishment है मेरे लिए. गुस्सा आया, breathe out. सर मेरे साथ तो ऐसे हो गया कि अब कोई कुछ बोल रहा होता है ना, तो मैं सुन ही नहीं रही होती हूँ कि हो क्या रहा है, करते रहो, जब शांत हो जाओगे तब बात करना। Absolutely. जब गुस्सा आता है ना सर, तो एक्चुअल में पता नहीं होता कि हम रिएक्ट कैसे करें, बस वो एकदम से वो मूवमेंट आता है और हम बिल्कुल रिएक्ट करके वो चीजों को बिल्कुल मैश कर देते हैं, खराब कर देते हैं। क्योंकि अब ये चीजें जब दिमाग में होता है ना कि हम जब गुस्सा आता है तो ब्रीथ आउट करना चाहिए, ब्रीथ इन करना चाहिए, तो वो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों को तो वो हमारे उसमें आ जाएगी, डेली यूज में आ जाएगी, अगर हमें ज्यादा गुस्सा आता है उस टाइम पे। बट सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जब गोल्डी मेरे साथ ज्वाइन हुई थी ना ऑफिस में, वहां से लेके आज तक की जर्नी में मैंने इसके अंदर बहुत चेंजेस देखे हैं। मतलब जितना गुस्सा इसका शुरू में था ना, अब तो उसमें से आई थिंक 10% भी नहीं रहेगा। अब मैं सोचती हूँ यार ये ऑफिस है, इनके पछड़े तो ऐसे ही चलते रहेंगे, छोड़ दो। इनकी वजह से मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट कर देती थी, मम्मी पे गुस्सा, पापा पे गुस्सा, भाई पे गुस्सा। तो अब मैंने ये बस मैम ने मुझे बस एक फंडा बताया कि तू चीजों को ना ऑफिस में ही छोड़ दिया कर, एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया कर, बस अब मैं यही करती हूँ। बोल दिया मेरे बॉस ने, गुस्सा कर दिया, ठीक है, सुन ली मैंने उनके बाद, उस चीज का गुस्सा मैं अपनी फैमिली पे या अपने किसी अदर पर्सन पे नहीं उतारती हूँ मैं अब। Correct. That is what is exactly. Observe, filter, let go. You are free. Once you are free, you can choose any emotion you want. Choose love, choose peace, choose happiness, choose joy. जो मर्जी choose करो, ये freedom है. और अगर ये freedom है, why should you go and choose a negative emotion? And that is the key to emotional intelligence. That is how you come to the higher level of consciousness of the higher chakras. Correct? Now also let me tell you, ये हम I'll take few more minutes before I close. इमोशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है आपको मालूम है? आपके फिजिकल बॉडी को, खुद के फिजिकल बॉडी को। यू हैव टू अंडरस्टैंड 90% ऑफ योर डिजीजेस आर कमिंग फ्रॉम योर इमोशंस, साइकोसोमैटिक है कि नहीं? राइट? तो बहुत सारी चीजें 90% मेजरली हमारे इमोशन से आ रहे हैं, और कुछ हमारे रॉन्ग परसेप्शन से आ रहे हैं। रॉन्ग परसेप्शन क्या है वो भी बता देता हूँ। इफ यू थिंक दैट आई एम ए विक्टिम and you keep blaming others, अभी इसमें इमोशन काम नहीं कर रहा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। आप समझ रहे हो कि मैं आई एम ए वीक, आई एम ए हेल्पलेस, आई एम ए नोबडी लव्स मी, इस तरीके के आप नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को लेके बैठे हुए हैं। अब ये इमोशन से भी और डीप है। ये इमोशन तो आता है चला जाता है, एनर्जी इमोशन है, ये तो आपके डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है, और ये आपके बुद्धि काम करेगी यहाँ पे। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर बिलीफ सिस्टम एंड दैट विल गिव यू फ्री फ्रॉम द अदर 10% ऑफ द डिजीजेस, क्योंकि ये इमोशंस को क्रिएट करते हैं, ये ईगो बनाते हैं हेल्पलेस विक्टिम का, और वो इमोशन उस ईगो से निकलता है। तो अब ये इमोशन कहाँ से निकलेगा ये हम अगली बारी डिस्कस करेंगे व्हेन वी गो टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ईगो, क्योंकि इमोशन भी तभी आता है व्हेन यू आर इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ बीइंग, एंड दैट लेवल ऑफ बीइंग हैज टू कम फ्रॉम योर लेवल ऑफ ईगो, व्हिच इज गिवन लॉट ऑफ एम्यूनेशन बाय योर मेमोरीज। राइट? तो फोल्डर को कैसे डिलीट करेंगे, ईगो को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, ये सब हम अगली बारी कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट मीटिंग। So before we close, any questions you have, anybody who wants to share or ask any question? Yeah, please go ahead. So, apart from those that method of 3 deep or 5 deep breaths to ease out of your anger, ये भी होता है जो, am I not audible? हाँ, अब ये ठीक है। हाँ जी। तो ये जो तर्जनी, ये जो मुद्रा है, इससे भी होता है जो, तो उसमें probably which one is the best finger out of these two, and
बस मुद्रास का अपना इम्पोर्टेंस है, सिंबल्स, मुद्रास या जब आप प्राणायाम कर रहे हो, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारी मुद्राएं हैं। ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हेन वी टॉक ऑफ प्राण शक्ति, प्राणायाम एंड मुद्रास, राइट। अभी एकदम से बता देने से नहीं चलेगा, बट यस देयर आर प्राण मुद्रास इफ यू आस्क मी। एंड प्राण मुद्रा का बड़ा सिंपल सा है, अगर आप पूछोगे इसमें ये होता है, दिस इज द प्राण मुद्रा, कैन यू सी दैट? ये 2 उंगलियां जो हैं ये स्ट्रेट रहती हैं और ये 3 जो हैं ये टच होती हैं। आप किसी भी टाइम पे ये करेंगे, आपकी प्राण शक्ति को जो है संचार बॉडी में बढ़ जाएगा। दोनों हाथों से करना होता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, दैट इज द वे यू डू इट। दिस इज द प्राण मुद्रा। क्लियर हो रहा है? अच्छा, संजीव ने भेजा था एक वीडियो। हाँ, उन्होंने एक वीडियो भी भेजा है, करेक्ट। 10 मुद्रास का। We have all the material here how you can increase your prana shakti, so don't worry. But if you ask for a mudra, this is the mudra for the प्राण शक्ति को बढ़ाने का। ऐसे बहुत सारी मुद्राएं हैं, we will talk on that, and we will talk of how to know your ego types and how to actually get freedom from your ego types, and that will take it up in continuation, maybe next week or maybe next week, right? All right, anybody else who wants to ask something? भैया एक क्वेश्चन है। हाँ जी, संजीव से भी और आपसे भी, कि जो लोग अपने आप को हर्ट करते हैं उनका एंगर कौन से लेवल पे, मतलब अंडरस्टैंड उनका EQ हाई है तभी उनको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो लोग अपना सर मारते हैं दीवार पे या अपने आप को हर्ट करते हैं, सो एंगर वो अपने ऊपर क्यों निकालते हैं? गिल्ट ऑफ समथिंग, guilt, whatever. I mean, they don't love themselves, they don't accept themselves, they don't forgive themselves, they don't thank themselves, they don't love themselves actually. Okay. They actually hate themselves. Right? उनको लगता है उनको जिंदा रहने का ज्यादा हक नहीं है। So we will talk of that. This is coming from an ego type. तो कौन से ego type से आ रहा है, इस पे हम बात करेंगे आगे, right? So that will give you more clarity. अभी मैं जवाब दूंगा तो थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक लाइन का सुनाया आपको भी, हाँ? So this is in short right now. If you want to understand, we will talk about this in detail later on, right? Okay. Anything? Anybody else who wants to ask some last and final call for question? Anybody wants to share? All right. Okay. Right. So in that case, we come to the end of the session. We are already 7 minutes past 9. So I will stop the session now. So thank you, Sanjeev ji, thank you, Amit ji, for your great contribution and good sharing from Tony ji, Preeti ji, Goldie, Smriti, and Kavan. So everybody contributed, and it was a wonderful session, great experience. Enjoy your life, enjoy your day, enjoy a great life, and let's meet again next week, same time. Thank you so same much, day. sir. Thank you. And I would like to thank both of you and Sanjeev sir, कि मैं इतनी ज़्यादा emotionally strong हो चुकी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती अभी. Great, wonderful. So enjoy your life, and let's meet again. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Bye bye, everybody. Bye, everybody. Bye, everybody. Bye, everybody.